Hello, my dear champions. My name is Naveen Kumar, and you are watching Science Square classes. As you all know that we completed our chapter 9 exercise, all questions, and there is examples remaining now. So we have to also solve them. So in this part, we are going to solve example number 1, example number 2, and example number 3. A brief solution. And one more thing, if you have not subscribed my YouTube channel till now, go it for now and subscribe it and press the bell icon and share with your friends and family members and ask them to subscribe. Okay. And if you did all these things, then come on, let's start now. Okay. So first of all, what we have given in the question number 1, example number 1, and what we have to find out. Before that, we have to read out the question. Okay. ठीक है, चलते हैं. So देखते हैं. In the example number 1, what we have given, a tower stands vertically on the ground. Vertically means, और आप बोल सकते हो altitude बोल सकते हो, चाहो तो perpendicular बोल सकते हो. Sorry है ना ऐसे. So ये आपके पास एक क्या है, टावर है, ठीक है. A tower stands vertically on the ground. This is the ground. Okay. Now this is the tower AB. AB. Okay. A tower stands vertically on the ground from a point on the ground. मान लो यहाँ पर एक point है ground पे. Okay. So from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. This is the top of the tower and this is the foot of the tower. So this point is 15 meter away from the foot of the tower. So 15 meter away from the foot of the tower. Let's assume that the following point is C. कौन सा point है? C. Next. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. कि यहाँ से angle of elevation बन रहा है, means we are looking from down to top. कि आप नीचे से कहाँ देख रहे हो, ऊपर की ओर देख रहे हो. That's why the angle of elevation will be here. So this is the angle of elevation which is 60 degree. Next, find the height of the tower. Means we have to find out the height of the tower. कि आपको क्या निकालना है? Tower निकालना है. So what we have given? Given that. We have given that. Let's assume that AB is the height of the tower. है ना, लिख देते हैं. That height of the tower is AB. Height of the tower. Height of the tower is AB. कि जो टावर है उसकी हाइट क्या है? AB. And a point from its foot. A point from its foot is C. From 15 meter away. 15 meter away a point from its foot. From its foot. From its foot is C. क्या है? C. क्या है? C. So therefore BC equals to 15 meter. Okay. What we have to find out now? We have to find out its height. Means we have to find out AB. आपको क्या निकालना है? AB निकालना है. Is there a doubt? No. So as you all know that we will take two sides. So first of all, we all know that the side in front of right angle is always its hypotenuse. This side in front of given angle is always its perpendicular and the remaining side is its base. So as you all know that we can have a three sides. Given that, find out and common. So there is a no common side. It means we have to take a given and we have to take a find out. So what we have given in this question, we have given base which is 15 meter. And what we have to find out, we have to find out its perpendicular. So there is a relation between perpendicular and base which is 10. क्या? 10 theta. ठीक है? So in triangle ABC, in triangle ABC, क्या? 10 थीटा की जगह एंगल कितना है? 60 डिग्री. tan theta equals to perpendicular upon base. What is the perpendicular? AB. And what is the base? Base is BC. Okay. So tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3. AB. What is the BC? BC क्या है? 15. So do cross multiply AB into 1. Do cross multiply AB into 1. AB and 15 into √3. So equals to 15 √3 meter. Which we have to find out. This is the height of the tower. कि यही टावर की क्या थी? हाइट थी. Is there any doubt? No. So ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का आंसर. नेक्स्ट, what we have given in the example number 2. So an electrician has to repair an electric fault. कि इलेक्ट्रिशियन है जिसको इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर करना है. On a pole of height 5 मीटर. तो एक पोल है जिसकी हाइट क्या है? 5 मीटर. सो ये पोल दे रखा है AB, AD. So AD is the 5 मीटर.
It is the 5 meter. Next, C needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. कि ये जो इलेक्ट्रिशियन है, ये जो लड़की आपको दिख रही है सुंदर सुंदर, ये जो है इसको इलेक्ट्रिशियन फॉल्ट क्या करना है, रिपेयर करना है। टावर की हाइट तो 1.5 है, लेकिन इसे जो है टावर की हाइट से कुछ मीटर नीचे आना है, ताकि अगर ये यहाँ पे आएगी तो ये खड़ी रहेगी तो इसके हाथ इस इलेक्ट्रिकल वायर पे चले जाए। अगर ये डायरेक्टली यहाँ पे आएगी तो यह ऊपर ठीक इसको करेगी, क्योंकि वायर तो यही है। अब ये खड़ी भी होगी तो ऊपर, जैसे मान लो कि यहाँ नीचे जो है ना ये, ठीक है, ये एकदम ग्राउंड पे, मान लो ग्राउंड पे, यही ग्राउंड पे वायर जा रहे हैं और मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, तो मैं इस पे खड़ा होकर ठीक क्या करूंगा, कुर्ता धोती तो नहीं। तो इट मीन्स इसको, इस वायर को, इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए इसे पोल से थोड़ा नीचे रहना पड़ेगा। जैसे मान लो अब ये पोल यहां तक जो है, ये क्या है, मान लो ये पोल है, ठीक है, पूरा पोल है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो यहाँ से मेरे हाथ यहाँ पे आएंगे और मैं इस इलेक्ट्रिक वायर को, क्या इलेक्ट्रिक फॉल्ट को क्या कर सकता हूँ, रिपेयर कर सकता हूँ। सो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर जा रहे हैं और यहाँ पर ये पहुंचना चाहती है। सो ये जो पॉइंट है ये 1.3 मीटर नीचे है। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आना चाहती है और ये 1.3 मीटर कहाँ है, नीचे। नेक्स्ट, फॉल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ओके, अब इसमें दे रखा सी फिगर, तो हमने फिगर देख ली। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। तो ये बोल रहा है कि इस लैडर की लेंथ क्या होनी चाहिए, देखते हैं। यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इंक्लाइंड का मीन्स होता है झुका होना, जो कितने डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, 60 डिग्री के पे। नेक्स्ट, टू द हॉरिजॉन्टल, ये रहा हॉरिजॉन्टल, इसके साथ 60 डिग्री पे झुकी हुई है। वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, ठीक है। अब ये बोल रहा है ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये पोल के फुट से कितनी डिस्टेंस पर है ना। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड हैव द फुट ऑफ द लेडर, कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर ये लेडर लगाई जाए कि ये 1.3 मीटर नीचे पहुंचे। पोल की हाइट से 1.3 मीटर कहां पहुंचे, नीचे। तो ये पोल के फुट से कितनी दूर रखी जाए ये लेडर। तो आपको इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द लेडर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड डी। ओके, सो व्हाट वी हैव गिवन दैट, आपको गिवन क्या है, दैट एडी कितना है, 5 मीटर। एज वी ऑल नो दैट, आप चाहो तो इस ए से लेके डी तक को क्या बोल सकते हो, ए बी प्लस बी डी। क्या बोल सकते हो, ए बी प्लस बी डी इक्वल्स टू ए डी। बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। सो आपने बोला दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी डी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी, इट इज 5 इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ये 1.3 मीटर नीचे ये पॉइंट, तो इसकी वैल्यू होगी 1.3 प्लस बी डी। अब यहां से अपन बी डी निकाल लेंगे, ये प्लस का इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। सो 5 माइनस 1.3, इट विल बी 3.7। सो बी डी इक्वल्स टू 3.7 मीटर। तो आपने बोला सर अगर ये 5 है पूरा और ये 1.3 है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, 3.7 मीटर। Now we have a triangle BDC. We have a triangle BDC. So okay, in triangle BDC, what we have given? We have given 3 point. देखो पहले उसके बारे में, उससे भी छोड़ दो। The side in front of right angle is always its hypotenuse. The side in front of given angle is always its perpendicular. Remaining side is base. क्या है, base. So we have to find out two things in this question. The first thing is height of the ladder and the second that ये वाले distance कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप पहले क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। क्या, डीसी फाइंड आउट करना पहले, ठीक है, डीसी ले लो, आपकी जैसे मर्जी वो ले लो। तो आपने बोला सर we have given its perpendicular, and what we have to find out, its base। क्या फाइंड आउट करना है, बेस। तो आपने बोला सर परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन, तो अभी आपने बताया क्या होता है, tan थीटा। सो वी हैव टू टेक tan theta and the angle is 60 degree. So tan 60 degree equals to perpendicular upon base, and the perpendicular is BD and the base is DC. What is the value of tan 60 degree? It will be √3 equals to BD क्या है, 3.7 upon DC. अब आप क्या करो, आपको तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, DC की। सो वी हैव टू इंटरचेंज द बोथ टर्म्स। आप इन दोनों टर्म को इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज का मींस है कि √3 की जगह कौन आ जाएगा, DC, और DC की जगह कौन आ जाएगा, √3। सो DC इक्वल्स टू
3.7 अपॉन, अब जो √3 यहाँ आएगा, सो व्हाट वी हैव टू कंसीडर दी √3 वैल्यू, अपने को √3 की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है, 1.73। तो मैं इसको इरेज करके क्या लिख देता हूँ, 1.73। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। अब आप सुनना, अब मान लो आप इस पॉइंट को हटाओगे, हटा दिया तो नीचे क्या लगेगा, आपने बोला सर नीचे 10 लगेगा, क्या लगेगा, 10। जब आप इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर क्या लगेगा, 100। सो 37 इंटू 100, सो DC इक्वल्स टू 3700 अपॉन 1730। तो जब आप 3700 को 1730 से डिवाइड करोगे, सो डीसी की वैल्यू क्या आएगी, डीसी की वैल्यू जो है अप्रोक्स 2.14 मीटर आएगी, है ना, 2.14 मीटर अप्रोक्स आएगी, अप्रोक्स। ठीक है, वैसे तो आएगी 2.13888, ऐसे कुछ आएगी 2.13888, लेकिन 3 के बाद सारे बड़े नंबर आ रहे हैं तो इसमें एक ऐड कर दिया, सो 2.14 अप्रोक्स बोल दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, डीसी। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द लेडर। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द लेडर। So we have to find out the height of the ladder. What we have given? We have given its perpendicular now. And what we have to find out? We have to find out its hypotenuse. So what is the relation between perpendicular and hypotenuse? This is the sin theta. कि perpendicular और hypotenuse के बीच में relation क्या होता है, sin theta. In same triangle, in triangle ABDC. आपने बोला सर sin theta, perpendicular और hypotenuse के बीच में relation क्या होता है, sin theta. So sin, the angle is 60 degree. Perpendicular upon hypotenuse, what is the perpendicular? Direct लिख रहा हूं 3.7 and its hypotenuse. The hypotenuse is BC, which we have to find out. So what is the value of sin 60 degree? It will be √3 upon 2 equals to 3.7 upon BC. So do cross multiply. So आप जब cross multiply करोगे तो 3.7 किससे multiply होगा, 2 से, तो 3.7 into 2 7.4 और √3 into BC. So √3 into BC equals to 3.7 टू जा बोलो, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो 3.7 into 2। कोई दिक्कत है? आपने बोला सर ये √3 इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में। सो आपने ये बात भी सही है, तो आपने बोला कि सर डायरेक्टली लिख देते हैं कि BC इक्वल्स टू 3.7 into 2 और इधर जो √3 मल्टीप्लाई में था इस तरफ आएगा डिवाइड में। सो आपने बोला सर यहाँ √3, मैंने बोला ठीक है। अब बताओ √3 की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है, आपने बोला सर 1.73। ठीक है, तो आपने बोला सर 1.73, तो कर दिया 1.73। अब आप में से किसी के दिमाग में आया सर हमने फर्स्ट में सोल्व किया कि 3.7 को जब आप किससे डिवाइड करोगे, 1.73 से। 3.7 को 1.73 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2.4। क्या आएगा, 2.4। सो 2.4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू 2 4.8 मीटर अप्रोक्स, सॉरी 1.14 है ना, 2.14 मीटर है ना। 3.7 को 1.73 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, 2.14। सो 2.14 इंटू 2, सो आपने बोला सर BC इक्वल्स टू 4.28 मीटर अप्रोक्स। ये इसकी क्या आ गई वैल्यू, एंड विच वी हैव टू फाइंड आउट। तो आपको यही फाइंड आउट करना था, एक तो क्या फाइंड आउट करना था कि लेडर की लेंथ क्या होनी चाहिए। सो दैट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, क्या होनी चाहिए, 4.28 मीटर की इस लेडर की लेंथ होनी चाहिए 4.28 मीटर। एंड ये पूछ रहा था कि हाउ मच फार फ्रॉम वी हैव टू प्लेस द लेडर, कि इसके फुट से कितना दूर आपको प्लेस करना था। तो 2.14 मीटर आपको जो है वो इसके फुट से दूर प्लेस करना है, किसको, लेडर को। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर दैट वी हैव टू फाइंड आउट। इन द क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, देखो पहले फाइंड आउट करने से पहले वी हैव टू रीड आउट द क्वेश्चन। मैं लिख देता हूं पहले आंसर। सो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, कि एक ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि कोई खड़ा हुआ है जो एक ऐसे किसी को देख रहा है। ठीक है, तो मान लो ये एक ऑब्जर्वर है जो अब किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वो ऑब्जेक्ट क्या है वो आगे देखेंगे। आपने बोला सर ये ऑब्जर्वर है एंड इट्स हाइट इज 1.5 मीटर, इट्स हाइट इज 1.5 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। मान लो ये ऑब्जर्वर है ए बी, ठीक है। नेक्स्ट
इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी है, क्या है, चिमनी बोल दो, टावर बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। सो एक मान लो ये चिमनी है, तो ये क्या होगी, चिमनी। तो ये मान लो सी डी है, क्या है, सी, और ये है डी। अब ये जो ये ऑब्जर्वर है ये भी ग्राउंड पे है और चिमनी भी कहाँ है, ग्राउंड पे, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, मैं ग्राउंड पे हूं, मेरी आंखों से जस्ट स्ट्रेट जाने वाली लाइन को क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दैट शुड बी द लाइन व्हिच इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। किस लाइन को क्या बोलोगे, ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ फ्रॉम अ चिमनी, और ये यहां से यहां तक क्या है, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम दी चिमनी। आपने बोला सर जरूरी है क्या, यहां से यहां तक 28.5 हो, सर ऊपर वाला भी तो 28.5 होगा, हाँ ऊपर वाला भी क्या होगा, 28.5। चाहे इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक देख लो, चाहे यहां से यहां तक देख लो, इट विल बी द सेम। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज। इस ऑब्जर्वर्स की आई से जब एंगल पे, सॉरी चिमनी पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 45 मीटर। तो आपने बोला सर ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 45 मीटर, सॉरी 45 डिग्री। सो एंगल क्या हो गया, 45 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, सो वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द चिमनी। द हाइट ऑफ द चिमनी इज CD, और इस पॉइंट को मान लो E। चिमनी की हाइट क्या है, CD। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम दैट देयर इज अ ऑब्जर्वर व्हिच इज AB, और ऑब्जर्वर की हाइट क्या है। अब ये लिख लेना आप कि देयर इज अ ऑब्जर्वर व्हिच इज AB, और ये क्या है 1.5 मीटर, एंड देयर इज अ चिमनी व्हिच इज CD, है ना, क्या है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि ऑब्जर्वर तो क्या है, लेट लेट ऑब्जर्वर इज AB, ठीक है। ऑब्जर्वर तो क्या है, AB, चिमनी क्या है, चिमनी इज CD, है ना। और व्हाट वी हैव गिवन नाउ, we have given the height of the observer is which is 1.5 meter. Next, what we have to find out, we have to find out the height of the chimney which is CD। आपको क्या निकालना है, CD निकालना है। आपने बोला सर अगर ये 28.5 है तो आपने इसे भी 28.5 बोल दिया। बोला सर अगर ये 1.5 होगी तो ये भी क्या होगी, 1.5, ठीक है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट सीई नाउ। अगर आप यहां से सीई निकाल लोगे तो सीई में क्या ऐड कर देना, ईडी। आपके पास किसकी हाइट आ जाएगी, चिमनी की। सो वी हैव टू कंसीडर ट्राइंगल CEA या AEC। इन ट्राइंगल ए, पहले एक बात बताओ, आपने क्या किया, AB इज इक्वल्स टू ED, तो यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन में दैट AB इज इक्वल्स टू ED, AB is equals to ED which is 1.5 मीटर। नेक्स्ट, आपने एक बात और बोली कि सर BD और AE एक दूसरे के क्या इक्वल, सो AE इक्वल्स टू BD which is 28.5 मीटर। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट नहीं। नाउ वी हैव टू कंसीडर ट्रायंगल AEC। सो इन ट्रायंगल AEC, कौन सा ट्रायंगल लिया, AEC। तो देखना ये ट्रायंगल आपने कंसीडर किया है, तो आपने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। द साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज इट्स हाइपोटेनियस। द साइड इन फ्रंट ऑफ गिवन एंगल ऑलवेज इज परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। सो आपके पास किसकी वैल्यू है, बेस की वैल्यू, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस व्हिच इज tan थीटा। सो tan and the angle is 45 degree, so tan 45 degree equals to perpendicular upon base। what is the perpendicular here, EC या CE बोल दो, चाहिए की बात है, CE upon CE upon AE। what is the height, sorry, what is the value of tan 45, so the value of tan 45 is 1 equals to CE। CE क्या होगा, तो आपने बोला सर CE तो अपने को फाइंड आउट करना है, so CE upon what is the value of AE, 28.5। so आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, CE into 1, CE equals to 28.5 into 1, 28.5, so 28.5 मीटर। आपने बोला सर चिमनी की हाइट आ गई क्या, नहीं, चिमनी की हाइट तो क्या थी, CD, आपने तो क्या निकाला है, केवल CE। तो आपने बोला सर
CD जो है C से लेकर D तक है वो सर CE प्लस ED का समी तो है, CE प्लस ED का समी क्या है CD। तो आपने बोला सर वी नो दैट CD जो है ना CD वो किसका सम है CE प्लस ED या DE, इन दोनों का समी क्या है CE, ये इतना इतना CE प्लस ED, इन दोनों का समी क्या है CD। सो CD आपको निकालना है, सो CD इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CE, बोला सर अभी निकाला है 28.5 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ED, ED की वैल्यू क्या है 1.5। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो CD आ जाएगा 30 मीटर। So therefore the height of the chimney is 30 meter और यही आपको find out करना था what is the height of the chimney. So the height of the chimney is 30 meter. Okay. In the example number 4, from a point P on the ground, there is a point P on the ground. The angle of elevation of the top of a 10 meter tall building. तो एक tall building है. So there is a point and there is a tall building. Okay. Which is 10 meter tall. This is the building. Okay. So आपने बोला सर ये क्या होगी बिल्डिंग होगी है ना, ऐसा कुछ करके बना देता हूँ। ये होगी बिल्डिंग। So this is the 10 meter tall building. Now there is a point P. So this is the point P. From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. कि ये बिल्डिंग जो है इसका टॉप है, ये बिल्डिंग के फुट का है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है which is 30 degree, which is 30 degree. Next, now a flag is hosted at the top of a building. आपको जो है इस बिल्डिंग पर एक फ्लैग लगाना है, फ्लैग होस्ट करना है। तो आपने बोला सर ये क्या हो गया फ्लैग हो गया, ये क्या हो गया फ्लैग, ठीक है, ये हो गया फ्लैग। तो आपने बोला सर ये फ्लैग हो गया, ये फ्लैग होस्ट करना है आपको, ठीक है, मैंने बोला ठीक है। नेक्स्ट, द फ्लैग a flag at hosted top of the building and the angle of elevation of the top of the flag stop from point P to 45 डिग्री, कि इसी पॉइंट से जो फ्लैग स्टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है which is 45 डिग्री, ठीक है। यहां पर मान लो ये है फ्लैग स्टॉप एंड ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या विच इज 45 डिग्री। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, आपको इस फ्लैग स्टॉप की क्या बतानी है लेंथ बतानी है, जो झंडा है उसकी लेंथ बतानी है। नेक्स्ट, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग से पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या है वो भी आपको बताना है। Is there any doubt? No. So first of all we are assuming that first of all what we have given, let assume that there is a point P, and there is a point P that we have given, and what is the height of the building? Let us assume that there is a point A. AB is the height of flag stop. AB is the height of flag stop, and BC is the height of building. आपने assume किया that there is a height of the flag stop is AB and height of the building is BC. Now we have to find out its PC and AB, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो लेट, आपने क्या बोला लेट हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप, हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप क्या है बोलो, हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप इज AB। आपके पास जो फ्लैग स्टॉप है जो झंडा है उसकी हाइट क्या है AB। मान लो कि ये यहां से यहां तक कितना है x मीटर है, क्या है x मीटर, और यहां पर लिख देता हूं x मीटर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट वी हैव गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग की जो बिल्डिंग है उसकी हाइट क्या है BC विच इज 10 मीटर, जो क्या है 10 मीटर है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट PC। एक तो क्या निकालना है आपको PC निकालना है एंड द अदर वन इज AB, और क्या निकालना है AB। सो एज यू ऑल नो दैट वी हैव टू फाइंड आउट बोथ ऑफ देम, ठीक है, अपने को इन दोनों को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर ए स्मॉलर ट्रायंगल व्हिच इज BCP। स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा है BCP। सो आपने बोला सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में कौन से ट्रायंगल को कंसीडर किया इन ट्रायंगल BCP, BCP। Why we are considering this triangle? Let us assume that first of all as we all know that the side in front of right angle is always is hypotenuse.
The side in front of given angle is always its perpendicular and the remaining side is base. So what we have to find out? We have to find out its base, and what we have given, we have given its perpendicular. So there is a relation between perpendicular and base which is tan theta. So क्या है tan theta? तो आपने बोला सर tan theta, बोलो tan theta equals to perpendicular upon base. What is the perpendicular? BC. What is its base? The base is PC या CP, है ना, इक्वल्स. चलो, सो थीटा क्या है अभी आपके पास? अब आपके पास जो थीटा है वो 30 डिग्री. सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? द वैल्यू ऑफ BC इज 10 एंड व्हाट इज इट्स बेस? PC. तो PC की जगह PC. tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3. सो 1/√3 इक्वल्स टू 10 अपॉन PC. नाउ वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. PC into 1, PC इक्वल्स टू 10 into √3 which is tan √3, है ना, and its unit is meter. So means we have already find out its base is tan √3. क्या आपने इसका बेस फाइंड आउट कर लिया? क्या फाइंड आउट किया है? tan √3 मीटर. tan √3 मीटर. कि आपने इसका बेस तो फाइंड आउट कर लिया. सो आपने बोला सर बेस तो अपने निकाल लिया. क्या आ गया बेस इसका? tan √3. नाउ what we have to find out next? कि आपको नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? We have to find out its AB. That's why we will consider a bigger triangle which is ACP, है ना. So in triangle ACP, आपने बोला सर ट्रायंगल ACP, तो यहां ड्रॉ कर लेते हैं एक बार ट्रायंगल ACP. ये मान लो पॉइंट A है, ये C है, ये क्या है? P. ठीक है. आपने बोला सर एंगल कितना है? 45 डिग्री. 45 degree. Is there any doubt? No. So the side in front of right angle is always its hypotenuse. The side in front of given angle always its perpendicular. Remaining side is its base. So आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है AB. बट ये तो आपको फाइंड आउट करना है, तो आप बोल सकते हो कि इसका परपेंडिकुलर आपको क्या करना है? फाइंड आउट. एंड व्हाट वी हैव? tan √3. अभी अपन ने फाइंड आउट किया था इसका बेस क्या है? tan √3. इट मींस दैट परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट and we have to find out next its perpendicular. So what is the relation between perpendicular and base? The relation between the perpendicular and base is tan. क्या? Tan. So in triangle ACP, tan 45 degree equals to perpendicular upon base. What is the perpendicular? AC upon base. What is its base? बोलो PC. What is the value of tan 45 degree? The value of tan 45 degree is 1. सो AC अब आपको पता है जो AC है ये कितनी साइड्स का सम है? देखो AB प्लस BC. अगर आप AB और BC दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या जाएगा? AC. सो वी कैन से दैट AC इज द सम ऑफ AB प्लस BC. कि AB प्लस BC जो है, AB प्लस BC इन दोनों का सम ही क्या है? AC. नेक्स्ट PC क्या है? tan √3. ओके. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. AB into 1, AB plus 1 into BC equals to tan √3 into 1, tan √3. Now you will notice that we have the value of BC which is 10 meter. आपके पास पहले से इसकी वैल्यू है क्या है? 10 मीटर. सो आपने बोला सर AB plus tan equals to tan √3. मैंने बोला ठीक है. आपने बोला सर ये प्लस का इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का. Then it will be AB equals to tan √3 minus 10. क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से? 10. सो दैट देयर इज अ सिमिलर टर्म व्हिच इज 10. सो AB इक्वल्स टू 10 कॉमन ले लीजिए. सो √3 माइनस 1. अब देखो 10 into √3, 10 1 जा 10. सो आपने बोला सर लेकिन बट वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ √3 1.732. सो आपको ये √3 की जगह ये वैल्यू कंसीडर करना है. तो देखो AB इक्वल्स टू 10 1.732 माइनस 1. आपने बोला सर 1.732 में से -1 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 10 मल्टीप्लीकेशन, इसमें से 1 गया तो क्या बचेगा? 0.732. बचेगा कि नहीं बचेगा? आपके पास एक 0 है तो आप इस पॉइंट को 1 डिजिट आगे खिसका दीजिए. जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा? बोलो AB इक्वल्स टू, बोलो ये पॉइंट जो है ये आगे चला जाएगा तो क्या आएगा? 7.32 और इसकी यूनिट मीटर. सो दिस इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ. तो आपसे पूछा जा सकता है कि पूछा गया था कि फ्लैग स्टाफ की हाइट क्या है. सो हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज x और ये AB भी बोल सकते हो. और आपने बोला सर x क्यों लिया सर आपने? तो कहीं में काम ही नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ये x मत लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, हटा देता हूं क्योंकि अपन ने इसका यूज ही नहीं किया.
ठीक है। सो इसका मतलब ये जो यहाँ से ए से बी तक की जो डिस्टेंस है फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो क्या है 7.32 मीटर हो गया। और आपको एक बात और बतानी थी कि ये पॉइंट पी बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे, सो 10√3 मीटर। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, कि एक आपके पास टावर है जो किस पे, ग्राउंड पे। सो ये टावर हो गया और ये क्या हो गया, ग्राउंड। ठीक है। सो दिस इज द ग्राउंड एंड दिस इज द दिस साइड ऑफ ए टावर, ये हो गया टावर। सो दिस साइड ऑफ ए टावर, तो मान लो ये जो टावर है ये ए बी है, क्या है, ए बी। सो द हाइट ऑफ द टावर इज ए बी। दिस साइड ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ऑफ ग्राउंड, लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर। ये बोल रहा है कि इस टावर की जो शैडो है वो 40 मीटर है, क्या, लॉन्गर है, 40 मीटर ज्यादा है, किससे, when the sun's altitude is 30 डिग्री, कि जब सन का जो एंगल है 30 डिग्री है, जब सन का एंगल क्या है 30 डिग्री, तब ये जो आपके पास इसकी शैडो है ये 40 मीटर ज्यादा है। 40 मीटर क्या है, ज्यादा। याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से कोई पॉइंट जितना दूर होगा एंगल उतना ही क्या होगा, छोटा। सो जैसे मान लो अब ये देखना ध्यान से, ये इतना दूर है तो ये एंगल कम है 30 डिग्री, पास लेके आओगे तो एंगल क्या हो जाएगा 45, 60, 70, 80, 90। तो जितना पॉइंट दूर होगा उतना ही एंगल क्या बनेगा, छोटा बनेगा। सो आपके पास एक तो एंगल है 30 डिग्री और एक एंगल है 60 डिग्री। तो आप खुद बताओ कि यहाँ पर पॉइंट कौन सा एंगल बनेगा, इस पॉइंट से क्या बनेगा, दूर है तो क्या बनेगा 30 डिग्री। मान लो एक पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बनेगा, 60 डिग्री। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो आपने बोला सर इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री। ठीक है। अब आपने बोला सर यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन वो तो क्या 30 डिग्री और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, तो सुनना, ए टावर दिस शैडो ऑफ ए टावर, कि इस टावर की जो शैडो है वो सुनना, ए टावर ऑफ ए शैडो स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, कि 40 मीटर लॉन्गर शैडो है, किससे लॉन्गर है, व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 मीटर, 30 डिग्री, कि जब सन का एंगल 30 डिग्री है तो इसकी जो शैडो है वो 40 मीटर ज्यादा है, किससे, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, कि जब ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है तो इसकी मान लो शैडो 10 है, क्या है 10। सो उससे 40 मीटर ज्यादा कौन है, ये, यहां से यहां तक। ठीक है। यहां अगर 10 है तो ये कितना होगा, बोलो, नहीं समझ में आ रहा, चल। ये बोल रहा है कि अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते हो तो मान लो इसकी शैडो क्या बन रही है, एक्स बन रही है। तो जब आपने इसका एंगल क्या बनाया 30, एंगल क्या बनाया 30, तो आपने बताया कि जब एंगल 30 बनेगा तो ये 40 मीटर क्या हो जाएगी, शैडो ज्यादा हो जाएगी इससे। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, कि जब एंगल मान लो 60 डिग्री है तब इसकी शैडो मान लो कि एक्स है, ये यहां तक इसकी क्या है शैडो, ये क्या होगी एक्स। और इससे 40 मीटर क्या है, लॉन्गर है, 40 मीटर क्या है, लॉन्गर। तो आपने बोला कि ये वाला जो है ये यहां से यहां तक, अब इसकी शैडो क्या होगी 40 मीटर लॉन्गर का मीन्स क्या होता है, अगर ये 10 थी तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 40, 50। अगर ये मान लो 50 थी, सॉरी ये 20 थी तो 20 प्लस 40, 60। जितना भी ये होगा उससे 40 मीटर एक्स्ट्रा है ये वाली शैडो, है ना। तो आपने बोला सर अगर ये 10 है तो ये पूरी क्या हो जाएगी 10 प्लस 40, 50। मीन्स जितना ये होगा उसमें 40 ऐड कर दो, ये आ जाएगा। तो आपने बोला सर इसका मतलब ये है कि ये क्या है 40 मीटर है। क्यों, अब ये पूरी देख लो, अब आप यहां से यहां तक, पहले मान लो एक्स थी, पहले मान लो एक्स थी और ये 40 मीटर क्या एक्स्ट्रा, तो यहां से यहां तक अब बी से लेकर इस पॉइंट तक क्या होगी, मान लो ये पॉइंट सी है और मान लो ये पॉइंट क्या है डी। तो बी से सी की जो शैडो है वो क्या होगी एक्स प्लस 40, लेकिन ये सी डी कितना है 40। अब ये मत सोच लेना, ये मत सोच लेना कि अगर बी डी एक्स है तो ये इतना इतना ही एक्स प्लस 40 होगा, नहीं, इतना इतना ये बोल रहा है उससे ज्यादा है 40। किससे ज्यादा है, बीडी से कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है। तो अगर मान लो बीडी एक्स है तो इससे 40 ज्यादा, ये वाला यहां से यहां तक है पूरा कि एक्स प्लस 40। तो आपने बोला सर ये क्या आएगा एक्स प्लस 40, कौन एक्स प्लस 40, बीसी, कौन है बीसी। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने बोला सर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, किसकी हाइट बताओ,
टावर की हाइट बताओ, कि आपको इस ए बी की हाइट बतानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर अ स्मॉलर ट्राइंगल विच इज ए बी डी। सो व्हाट वी हैव गिवन, आपको गिवन क्या है, गिवन दैट आपको गिवन है कि यहां पर आपके पास जो शैडो है, जो शैडो यहां पर बन रही है उससे 40 मीटर ज्यादा इस 30 डिग्री पर बन रही है। तो मान लेते हैं कि ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द लेट, हाइट ऑफ द टावर इज ए बी, मैं ऐसे लिख रहा हूं, हाइट ऑफ द टावर इज ए बी, कि जो टावर की हाइट है वो क्या है, ए बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर अ स्मॉलर ट्राइंगल व्हिच इज ए बी डी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, मैं यहां बना रहा हूं एक बार फिर से, ए बी सी डी। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार थोड़ा सा आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। इसने बोला है कि यहां पर जो भी शैडो बनेगी, ये टावर की शैडो है बी डी, है ना, ये यहां पर जो भी शैडो बनेगी उससे 40 कहां एक्स्ट्रा बनेगी, इस पॉइंट पर बनेगी, कि यहां से यहां तक जो है, अगर मान लो यहाँ 10 है, ये 10 है तो ये होगी 10 प्लस 40, है ना। अगर मान लो ये 20 है तो ये होगी 20 प्लस 40। अगर मान लो ये 30 है तो ये होगी 30 प्लस 40। मान लो ये जो है ना ये x है, तो ये पूरी क्या होगी, x प्लस 40। ऐसे बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जो भी इसकी शैडो है उससे 40 एक्स्ट्रा है आगे, तो ये x है, 40 एक्स्ट्रा कहाँ है, आगे। ये जितना है उससे 40 आगे है, तो ये रहा x और इससे 40 कहाँ है, आगे। तो पूरा क्या हो गया, x प्लस 40। समझ गई, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपने कौन सा ट्राइंगल चूज किया, ए बी डी, तो आपने बोला सर ए बी डी ट्राइंगल चूज कर लो। सो अपन ने एज्यूम किया कि ये क्या है, x, और एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर की क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट विच इज AB। So we all know the side in front of right angle is always its hypotenuse. The side in front of given angle is perpendicular. Remaining side is base. क्या निकालना है, height of the tower which is perpendicular. And what we have assumed that its shadow is x. So ये आपने assume कर लिया, ये फिर ये मान सकते हो कि एक बार अपने पास given है, तो ठीक है। So what is the relation between perpendicular and base which is 10, है ना। So आपने बोला सर 10 and the angle is 60 degree, 10 60 degree equals to perpendicular, perpendicular क्या हो गया, AB, and its base is x. So what is the value of 10 60 degree, it will be root 3 equals to AB upon x. So from here we can say that its height, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए कि इसकी जो हाइट है वो क्या आ जाएगी, AB इंटू 1, AB इक्वल्स टू √3x मीटर। तो बोला सर अपन ने किसकी हाइट निकाल ली, AB की हाइट निकाल ली। सर हो गया क्या क्वेश्चन, नहीं, अभी आपको क्या निकालना है, x निकालना है। तभी जब आप x निकाल लोगे तभी आपके पास किसकी हाइट आएगी, AB की। तो इसका मीन्स अभी आपको किसकी वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, x की। जब आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास टावर की क्या आ जाएगी, हाइट। नाउ वी विल कंसीडर अ बिगर ट्राइंगल ABC। सो इन ट्राइंगल ABC, आपने बोला सर ट्राइंगल ABC में क्या, अब आपके पास इसका बेस तो है, इसका मतलब इसका बेस तो है। द साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज इट्स हाइपोटेन्यूज, द साइड इन फ्रंट ऑफ गिवन एंगल इज ऑलवेज इट्स परपेंडिकुलर, एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। तो आपके पास बेस है, फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, tan थीटा, है ना। सो द एंगल इज 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज इट्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज AB upon what is its base, BC. So what is the value of tan 30 degree, it will be 1 by √3। so आपने बोला सर इसकी वैल्यू होगी 1 by √3 इक्वल्स टू AB। AB की वैल्यू अभी आपने निकाली थी क्या, ये √3 या फिर x √3 बोल, चलो कोई नहीं, √3x अपॉन BC क्या है, बोला सर B से लेकर C तक, सर ये x था और 40 मीटर आगे एक्स्ट्रा और बन रही है, तो ये सर 40 होगी, तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया, x प्लस 40, x प्लस 40। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो √3 इंटू √3, सो √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3, और साथ में क्या है x, 1 इंटू एक्स प्लस 40, सो x प्लस 40। यहां पर आपके पास जो प्लस का x है इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। सो 3x माइनस x 2x इक्वल्स टू 40। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहां पर ये x जो है मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी 2 मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा डिवाइड में। सो 40 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया, 20 मीटर।
सो ये आपके पास आ गई 20 मीटर। क्या कि सर यहाँ पर जब एंगल 60 डिग्री बन रहा था तभी इसकी शैडो क्या है 20 मीटर, और सर जब एंगल 30 बनेगा तब क्या बनेगी इसकी शैडो, तो 20 तो ये होगी, 40 आगे और है, तो 20 + 40 क्या हो जाएगी इसकी शैडो 60 मीटर। कब? जब एंगल क्या बनेगा 30 डिग्री। तो अभी तो अपने को ये सब नहीं निकालना था, अपने तो क्या फाइंड आउट करनी थी, हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, height of the tower is AB equals to √3 into x. So x की वैल्यू क्या आ गई 20, so AB equals to √3 into 20. So √3 into 20 क्या हो जाएगा 20 √3 मीटर, which is the height of the tower. ये इस टावर की क्या होगी हाइट। Now we will discuss about example number 6 and what we have given, what we have to find out. Before that, we have to read out the question carefully. So listen, in example number 6, the angles of depression of the top and the bottom means we have an object and just we have to consider its top and bottom. So of an 8-meter tall building. So there is a 8-meter tall building from the top of a multi-story building. There is a difference between the sentence that one of them is saying that 8-meter tall building means एक building है जिसकी height क्या है 8 मीटर, and the second one is saying that from a multi-story building means this is the 8-meter tall building and the other one is a multi-story building. So we have this one is a 8-meter tall building. Okay, this one is the 8-meter tall building, and the next that we have is a multi-story building. So this is the 8-meter tall building which height is 8 meters. So I am assuming that, sorry, we have given that we have a building and I am assuming that its top is point A and its bottom is point B. Another, we have a multi-story building. I am assuming that this is the P and this is the top of the multi-story building and this is the bottom of the multi-story building which is Q. Okay, and we all know that a building and a multi-story building will lie on the ground. किस पे lie करेंगे ground पे, so there is a ground. So this is the ground. Okay, next what we have given in the question, sorry, example number 6, we will read again that the angles of depression means we are viewing or seeing an object from the top to the bottom. कि आप bottom से कहाँ देख, sorry, top से कहाँ देख रहे हो bottom पे, means we are standing here. क्योंकि अगर आप यहाँ पर खड़े होगे तभी तो कहाँ देखोगे, नीचे देखोगे. So the angles of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building. आप इस 8-meter tall building का सबसे पहले क्या कंसीडर कीजिए टॉप, और उसके बाद क्या कंसीडर कीजिए इट्स बॉटम। क्या जब आप इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर आप स्टैंड कर रहे हो, खड़े हुए हो, तो फर्स्ट थिंग दैट द लाइन इज गोइंग थ्रू इट्स आईज इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन. A straight line from the eyes is known as horizontal line. So this line is known as horizontal line. Horizontal line. And we all know that from the angles of depression of the top. So this is the top. From here we have to draw an angle of depression. So this is angle of depression which is 30 डिग्री. मीन्स पहले अगर टॉप आ रहा है तो टॉप का एंगल 30 डिग्री है. रेस्पेक्टिवली का मीन्स क्या होता है कि जो आपके पास पहली बात आई है उसके लिए पहला आंसर. सो मीन्स वी हैव वी हैव द टॉप. सो इसके लिए जो एंगल है वो क्या होगा 30 डिग्री. एंड द नेक्स्ट इज the angles of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building. ये 8-meter tall building का क्या हो गया top and this is the bottom. तो जब आप इसको यहाँ, so जब आप ऊपर से इस bottom को देख रहे हो, so this is the angle of depression which is 45 degree. ये कौन सा angle of depression है 45 degree. Is there any doubt now? Okay, so listen, as we all know that we will join this point from A. आप इस point को जो है यहाँ join करवा दीजिए multi story building. Okay, so if this point is 8, so this will also 8. Remember one thing, and the reason is we can say that A, B, Q, or let this point is point R is a rectangle. Why? As you all know that this line is parallel to this one and this line is parallel to this one. And the another hand, we have given this angle. Sorry, we all know that
building, a tower, a pole will stand on right angle. So this means it is 90 degree, it is also 90 degree. Say yes or no? Is there a doubt? This will is also 90, this one is also 90. And one more thing, देखो आपको ये पता ऐसे पता लगा कि ये 8 है तो ये 8 क्यों है? लाइक मेरी हाइट जो है मान लो कुछ भी मान लो 5 फुट है, ठीक है, ज्यादा है वैसे, ठीक है ना। तो मान लो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तब भी 5 फुट रहेगी, इधर चला जाऊंगा तब भी क्या रहेगी 5 फुट, और इधर आ जाऊंगा तब भी क्या रहेगी 5 फुट। मीन्स इसका मीन्स है कि अगर आप यहाँ से इसको अगर सेम ऐसा ऐसा यहाँ अगर लाइन ड्रॉ कर देते तो यहाँ से यहाँ तक अगर 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या रहेगी 8 रहेगी। इज एनी डाउट? नो। So as you all know that angle of elevation is always equals to angle of depression कि elevation जो है elevation वाला जो angle है वो depression वाले के क्या होता है equal। means अगर ये 30 डिग्री है so this will also 30 डिग्री। okay, next this one angle is 45 degree so this will also have 45 degree, and the reason is because angle of elevation is always equals to angle of a depression. Is there any doubt now? Okay, so let assume that the 8 meter tall building is AB कि जो 8 meter वाली tall building थी which is AB वो क्या है AB। आंसर आपको assume करना है let 8 meter tall building 8 meter tall building is 8 meter tall building is AB कि जो 8 मीटर वाली टोल बिल्डिंग है वो क्या है AB, एंड द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज PQ, एंड द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग the multi-storied building is PQ. Multi-storied building is PQ. We assume that. Okay. And what we have to next, what we have to find out in this question. So find the height of the multi-storied building means we have to find out the height of PQ. The height of the multi-story building which is PQ. कि आप जो है multi-story building की क्या height find out कीजिए height. And another the distance between the two buildings कि दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस कीजिए कितनी है BQ, और आप चाहो तो क्या बोल सकते हो AR। दैट BQ जितना होगा उतना ही कौन होगा AR। सो जितना BQ होगा उतना ही कौन होगा AR। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट वन मोर थिंग, क्या आप एक बात बताओ ABQR इज अ रेक्टेंगल, क्यों ये कितने डिग्री का 90, ये 90, ये 90, ये 90 एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर ABQR एज अ रेक्टेंगल। लेट so it is ABCD, ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। so if ABCD is a rectangle, sorry, ABQR, ABQR is a rectangle, and if ABQR is a rectangle then its opposite sides are equal। so इसके opposite sides कैसे होंगे equal? so we can say from here that what we can say that AB AB equals to QR and BQ AR equals to BQ. Okay. So what we have to find out from here? We have to find out what we have to find out? We have to find out the height of the multi-story building which is PQ, and one more thing, we have to find out BQ, or we can say AR or BQ both। इनमें से किसी को कुछ भी बोल दो because both are equal to each other। so as you all know that we have two triangles, the first one is ARP, the smaller triangle, and the third one is, sorry, second one is BQP, which one is the largest triangle या larger triangle? okay, so first of all we will consider smaller, direct बड़ा triangle नहीं लेंगे है ना, पहले क्या लेंगे छोटा triangle ले लो। so first of all we will consider solution, we will consider in triangle ARP, in triangle ARP। so this side in front of given angle is always its perpendicular, this side in front of right angle is always its hypotenuse, and the remaining side is its base। so as you all know that we have to find out AR, say so no, and we have to also find out its PR because आपके पास जो है वो Q और R की वैल्यू तो है, लेकिन अगर आपके पास RP या PR की वैल्यू और आ जाए तो PR प्लस QR दोनों को ऐड कर दो क्या आ जाएगा PQ। so means we have to also find out the PR and we have to also find out the AR। so we are considering the both sides, that what we have to find out, so we have to find out its perpendicular and
बेस, दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। यस और नो? सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस व्हिच इज tan थीटा and the angle is 30 degree. So tan 30 degree equals to perpendicular. What is the perpendicular? So its perpendicular is PR upon what is its base AR. So the value of tan 30 degree is 1 by root 3. Okay. Next PR upon AR. Is there any doubt? So we have to do the cross multiplication. From here we can say that A1 AR into 1 AR. AR equals to root 3 into PR. Root 3 into PR. Is there any doubt? So we have already find out the value of AR. कि आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है? AR की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. Yes or no? तो आपने बोला सर अगर AR की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, so we know that AR is also equals to BQ. So we can say that AR equals to BQ is root 3 PR. Yes or no? Means चाहे आप AR बोल दो चाहे क्या बोल दो, BQ, because ABQR is a rectangle and in rectangle opposite sides are equals to each other. So we can say AR or we can say BQ. Is there any doubt now? No. So now we will consider the another triangle BQP. So in triangle BQP, so आपने बोला सर BQ तो अपने निकाल लिया. Yes. So what we have to find out? What we already find out the value of BQ, which is root 3 PR. Say yes or no? So as you all know, the side in front of right angle is always its hypotenuse. The side in front of given angle always its perpendicular and the remaining side its base. So base अपने पास है and what we have to find out in the bigger triangle, larger triangle. Okay, let me do one thing that I am coloring it by black color. ठीक है. So in this triangle we have to find out its perpendicular PQ. ये आपके पास है ऑलरेडी बट वी हैव टू फाइंड आउट ऑल्सो PR ऑल्सो. तो अगर आपके पास PR की वैल्यू आ जाएगी सो PR प्लस QR विल बी PQ. तो मींस आपको ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है एंड दैट बेस वी हैव ऑलरेडी. बेस आपके पास है. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस व्हिच इज tan थीटा. सो tan theta and the angle is 45 degree. So tan 45 degree equals to perpendicular upon base. What is its perpendicular? PQ. Complete, क्योंकि triangle पूरा लिया ना BQP, तो perpendicular भी पूरा होगा PQ upon. What is its base? Its base is BQ. So BQ. What is the value of tan 45 degree? It is 1 equals to PQ upon. What is the value of BQ? एक बार BQ की जगह BQ consider कर लेते हैं. So do one thing, that cross multiplication. So BQ PQ into 1 we can say, or PQ into 1 PQ equals to BQ into 1. बोलो BQ. So we did one thing from here, that PQ is equals to BQ. What is PQ? PQ is the height of the multi-story building. कि multi-story building की height क्या है? PQ, which is equals to BQ. Means ये अगर दो building है आपके पास, this one is a multi-story building, okay? This one is the multi-story building and this one is the 8 meter tall building. ठीक है. तो ये बोल रहा है जितनी इस multi-story building की height है उतनी ही इन दोनों buildings के बीच में क्या है? Distance. ऐसे. अब देखो अगर यहाँ पे ऐसे कर दे तो अगर ये multi-story building की height जितनी होगी उतनी इन दोनों के बीच में क्या होगी? Distance. क्या होगी? Distance. So means the height of the multi-story building is equals to distance between the both building. Distance between the buildings. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? Equal. तो आपने बोला सर we have already find out the value of BQ, कि आपने BQ की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली. So what is the value of BQ? root 3 PR. So PQ P यहां से यहां तक है ना, PQ. So we can say PR plus QR. PR plus QR which is PQ. तो आप चाहो तो इसे PR plus QR भी क्या होगा? PQ होगा कि नहीं होगा? So PQ can be written in the form of PR plus QR equals to. What is the value of BQ? The value of BQ is root 3 PR. Root 3 PR. Okay. So root 3 PR इस तरफ प्लस का, इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का. So it will be changed into negative. So PR यहां लिख देता हूं, PR minus root 3 PR equals to QR. What is the common between the terms? There is a common between the terms which is PR. Which is PR.
सो आप यहां से पी आर कॉमन ले लीजिए, पी आर कॉमन ले लिया, तो जैसे ही आप कॉमन लोगे यहां पे क्या बचेगा आपके पास, 1, गलत कर दिया, ओके सॉरी, नाउ डू वन थिंग, ट्रांसपोजिंग द पीआर, पीआर का क्या कर दीजिए आप, ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, सो दिस साइड क्यू आर बचेगा आपके पास, सो क्यू आर इज 8, क्यू आर इज 8 इक्वल्स टू √3 पी आर माइनस पी आर, √3 पी आर माइनस पी आर, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द टर्म्स, देयर इज अ कॉमन बिटवीन द टर्म्स व्हिच इज पी आर, दोनों टर्म्स के बीच में क्या कॉमन है, पी आर, सो आप चाहो तो इसको इधर भी लिख सकते हो, दैट पी आर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपके पास, यहां से बचेगा √3 माइनस, और यहां से कुछ नहीं मीन्स 1 इक्वल्स टू में क्या था 8, सो मे आई आस्क यू टू वैल्यू ऑफ पीआर की वैल्यू क्या होगी, एज यू ऑल नो दैट दिस वैल्यू इज इन द मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल बी चेंज इनटू डिनोमिनेटर, सो पी आर इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 माइनस 1, √3 minus 1, and you all know that we didn't consider the square root in the denominator, अपन डिनोमिनेटर में क्या कंसीडर नहीं करते, स्क्वायर रूट कंसीडर नहीं करते, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डू द रेशनलाइजेशन, कि आपको क्या करना पड़ेगा इसका रेशनलाइजेशन, और अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है तब तो आप इसको ऊपर नीचे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड अगर आपके पास नीचे पॉजिटिव होता तो ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे, ओके, सो नाउ लुक हियर, a plus b multiply a minus b, so what is the identity, the identity of a plus b into a minus b is a square minus b square, कि अगर a plus b into a minus b होगा तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, a square minus b square, so pr equals to 8 bracket √3 plus 1, what is the value of √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस वैल्यू ऑफ सॉरी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, देखो ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर बोल दो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो 3 माइनस 1 क्या होगा 2, ओके, सो 2, so 2 1 ja 2, 2 4 ja 8, so this is the value of pr, which is pr equals to 4 into √3, 4 √3 plus 4 into 1, 4 meter. This is the value of PR, but we have to find out the value of PQ, means multi-story building. ये तो आपने P से लेके R तक find out किया, but we have to find out the PQ. तो अभी आपने बोला था सर that PQ जो है वो किसके एडिशन के इक्वल होता है, PR प्लस QR, देखो अभी लिखा था ना कि PR प्लस QR क्या होता है PQ, so PR प्लस QR इक्वल्स टू PQ, तो PQ क्या होगा PR, तो PR की वैल्यू क्या है 4 √3 प्लस ये तो 4, ये तो PR की वैल्यू प्लस QR, so what is QR, QR this is 8, so 8 plus 4 क्या होगा 12 है, 8 plus 4 12 plus 4 √3, 4 √3, may I know what is the common between the terms, as you all know that 12 can be written in the form of 4 into 3, so 4 is common between the terms, so PQ equals to, as you know that PQ is also equals to BQ, तो आप चाहो तो इसे PQ बोलो और आप चाहो तो इसे BQ बोलो, एक ही बात है, so 4 कॉमन ले लिया, क्या बच गया आपके पास यहाँ 3 प्लस यहां से 4 था कॉमन चला गया √3 meter. This is the answer that we have to find out in this question, that what is the height of the multi-story building, so the height of the multi-story building is 4 bracket 3 plus √3 meter, and the second one is that we have to find out the distance between the two buildings, so the distance is also same to the multi-story building's height, तो 4 bracket 3 plus √3 meter, so इस क्वेश्चन में आपको जो फाइंड आउट करना था वो आपने फाइंड आउट कर लिया. In the next question, it means in the example 7, what we have given, from a point on a bridge across a river, across का मतलब होता है आर पार, means there is a river, there is a river, so this is the bridge, this is the bridge over the river, across the river, so this is the bridge, ये जो हो गया ये क्या हो गया bridge हो गया across the river. Next, what we have given next,
we have given that the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree. कि एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं मींस आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से कहां देख रहे हो, नीचे. सो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज, आप इस ब्रिज पर कहीं भी क्या ले लीजिए, पॉइंट ले लीजिए. सो लेट एज्यूम दैट देयर इज अ पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया. सो दिस इज द पॉइंट. फ्रॉम दिस पॉइंट, from a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree. मान लो एक बैंक तो ये है इसका और एक बैंक ये है. बैंक का मीन्स जो आप सोच रहे हो वो नहीं, क्या है, किनारा. सो यहां से एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये रहा कि आप इसे देख रहे हो, ठीक है. सो ये एंगल डिप्रेशन आप क्या एज्यूम करना चाहते हो, चाहो तो 30 डिग्री ले लो, चाहे तो 45 डिग्री ले लो, बिकॉज हमें पता नहीं है कि कौन सा किनारा किधर है. तो ये मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री. एंड द नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स, बैंक्स का मतलब किनारे, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया. सो दिस इज 45 डिग्री. ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री. ओके. नेक्स्ट, रेस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज एट हाइट ऑफ द 3 मीटर, तो मान लो जब आप इन दोनों किनारों को ज्वाइन करवा दोगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा. नेक्स्ट, व्हाट इज सेइंग दैट द हाइट ऑफ इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, कि जो ब्रिज है वो 3 मीटर की हाइट पे, मींस अगर ऐसे आपकी रिवर जाए फ्लो हो रही है तो यहाँ पर ब्रिज होगा, तो इनके और इनके बीच की जो ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, हाइट है. क्या है, हाइट. तो ब्रिज जो है, द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, कि ब्रिज जो है वो 3 मीटर की हाइट पे है. सो ये इसकी हाइट दे रखी है अपने को 3 मीटर. सो ये आपके पास दे रहेगा 3 मीटर. नेक्स्ट, फाइंड विड्थ ऑफ द रिवर, आपको रिवर की जो है वो क्या बतानी है, विड्थ बतानी है. मींस लेट एज्यूम दैट दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. फ्रॉम पॉइंट पी there is an angle of depression 30 degree and 45 degree respectively, and the height of the bridge from the river is मान लो PQ, कि इसके और इसके बीच की हाइट क्या है, PQ, which is 3 meter. Say so no. And one more thing, we all know that angle of elevation is always equal to angle of depression. Means this angle is 30 degree, then this will also 30 degree. And one more thing, if this angle is 45 degree, then this will also 45 degree. Is there any doubt now? What we have given in this question, that AB is the width of the canal, width of the river, कि जो A और B है वो कैनल की क्या width है. AB is the width of the canal, width of the canal. Next, PQ is height. If bridge at height of 3 meter, so height of the bridge, if bridge is at height of 3 meter, is at height of 3 मीटर, तो इसको बोल दो PQ. क्या बोल दिया, PQ, कि जो 3 मीटर की हाइट है ये क्या है, PQ. फाइंड आउट विड्थ ऑफ द रिवर. सो फाइंड आउट विड्थ ऑफ द रिवर, आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है AB. इज देयर एनी प्रॉब्लम नाउ? ओके. सो लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर अ ट्रायंगल इन बोथ ऑफ देम, कि आप इन दोनों में से किसी एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लीजिए. ओके. सो लेट एज्यूम दैट वी आर कंसीडरिंग द ट्रायंगल फर्स्ट. ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, व्हिच वन इज, ये मान लो AQP. सो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल AQP, इन ट्रायंगल AQP, कि AQP एक ट्रायंगल कंसीडर कीजिए. ओके. यहां पर एंगल कितने डिग्री का आपके पास, 30 डिग्री, और ये वाली हाइट क्या है, 3 मीटर. सो एज यू नो दैट वी हैव टू फाइंड आउट इट्स AB. क्या फाइंड आउट करना है, AB. तो जब आपको AB फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो क्या, कि पहले AQ फाइंड आउट कर लीजिए, फिर QB फाइंड आउट कर लीजिए, और व्हेन वी ऐड AQ और QB देन वी विल गेट AB. तो इसका मींस अपन इसको जो है फैक्टर्स में डिवाइड करके फिर फाइंड आउट करेंगे. पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, AQ, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट इस BQ और QB, कुछ भी बोल सकते हो आप. सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, AQ, एंड व्हाट वी हैव गिवन this one. So the side in front of right angle is always its hypotenuse, this side in front of given angle is always its perpendicular, and the remaining side is its base. तो आपने बोला सर we have given its perpendicular, क्या given है, perpendicular, and what we have to find out its base. So there is a relation between the perpendicular and base which is tan theta. So as you know that tan and the angle is 30 degree,
10 perpendicular upon base. The perpendicular is PQ upon AQ. And the next one is, what is the value of tan 30? 1 by root 3 equals to, what is the value of PQ? 3. What is the value of AQ? Do cross multiplication. AQ into 1, AQ equals to 3 into root 3, 3 root 3 and meter, its unit. So we find out its AQ. Now what we have to find out next? We have to find out QB, or we can say BQ. So in triangle BQP, BQP. So अब आपने बोला सर इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लीजिए, तो मैंने बोला ठीक है, ऐसा कोई ट्रायंगल है. This one is BQP. Right angle, given angle is 45 degree. So the side in front of right angle is always its hypotenuse. The side in front of given angle is always its perpendicular, and the remaining side is base. So we have to find out its base, and we have given its perpendicular. So there is a relation between perpendicular and base is tan theta. Okay. So tan theta, the value of theta is 45 degree. So perpendicular is PQ upon base is BQ. What is the value of tan 45 degree? This one is 1 equals to PQ is 3 upon BQ. Do cross multiplication. BQ into 1, BQ, and 3 into 1, 3 meter. So the BQ is 3 meter and the AQ is 3 root 3 meter. So what we have to find out? We have to find out its width of the canal या river AB. So we know that AB अगर आपको find out करना है, so we can say AQ plus BQ या QB भी बोल सकते हो. So AQ plus BQ, कि आप AQ प्लस BQ को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए. चाहो तो आप QB भी लिख लो ना, जो आपकी मर्जी वो लिख सकते हो. बिकॉज आप यहां से यहां होगी तो अगर 5 यूनिट है तो यहां से यहां तक जाओगी तो भी क्या रहेगा, 5 ही रहेगा. 5 मैंने अपनी मर्जी से एज्यूम किया है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 है, तो यहां से यहां तक की भी क्या होगी, 10 है. पॉइंट्स तो दोनों फिक्स है, तो आप बोल सकते हो. नेक्स्ट AQ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AQ? द वैल्यू ऑफ AQ इज 3 रूट 3, 3 रूट 3 प्लस what is the value of BQ? Yeah, 3. So what is the common between the terms? The common is 3. So AB equals to 3 common ले लिया, क्या बच गया, root 3 plus 1 meter. So this is the width of the canal, 3 bracket root 3 plus 1 meter. So I hope you will understand all these examples in an easy way. And one more thing, if you have not like got it my point of view that what I'm trying to teaching you, then please comment me and suggest me something that we are not understanding what you are trying to teaching us. So I will explain in a different, I will try to explain in a different way. I will try to find out the other ways to understand you, that you can got it what I'm trying to teaching you. Okay. And one more thing, if you have not subscribed my YouTube channel till now, then please go it for now, subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Whenever we upload the next video, then you will get a notification and you can watch the class before anyone. So I hope you all are good. और अपन ने चैप्टर 9 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, इसके एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर लिए. सो विच चैप्टर यू वांट टू स्टार्ट नाउ? आप कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कमेंट मी, आई विल स्टार्ट सून इट अगेन. ओके, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग गुड. सो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.